Okay, so let us start the rest of the class. So what I told that so let us coming back to the second class of this session. I'm Kaustubh Kanti Mondal from Dumka Engineering College, and we are here to start our class of digital signal processing. And the last class we have attendance of near about 12 students. Let us see what is the attendance of now. The students will join very soon, and we are talking on the discrete time or linear convolution. And what we have seen in this linear convolution is that we are generating a new type of signals x3n convoluting two signals x1n and x2n, and the formula was x3n equals to summation of m equals to minus infinity to plus infinity x1n x2n minus m. We can also write x3n equals to summation of m equals to minus infinity to plus infinity x2m into x1n minus m. That is vice versa. And the operator is asterisk of convolution. So in linear convolution, the sequences x1n and x2n are non-periodic sequences, and the sequences x3n obtained by the convolution is also non-periodic. Hence, the convolution is also called aperiodic convolution. Hence, the convolution is called aperiodic convolution. So now we will start the procedure for evaluating linear convolution. So procedure for evaluating linear convolution. There are some procedure of linear convolution. So let us give an example to you so that you can understand what is the procedure of that. Okay. So I'm giving a problem. Determine the response of the LTI system whose input XN and impulse response HN are given by Xn equals to 1, 2, 0, 5, 0.5. 0.5, 1, and Hn equals to 1, 2, 1, minus 1.
So this is given to us and we have to find the response. That means the new signal generated by the use of convolution. So how to do? There are two procedures. First, I will tell you the procedure of graphical method. And next, we will do the procedure of a matrix method. So what we get, y of n, that is the response. So y of n can be obtained by x of n convoluted with h of n. So that is the formula. So that will be the formula, summation of m equals to minus infinity to plus infinity x of m into h of n minus m. Okay. The input sequence starts at n equals to 0. If I get the formula, then I give here the arrow marks. Okay. So this arrow marks means this is the n equals to 0 position. So the input sequence starts at n equals to 0. And you can see, sorry. So you can see here it is the n equals to 0 position. So if this is n equals to 0's position, this is n equals to minus 1. So the input sequence starts from n equals to 0 and the impulse response starting from n equals to minus 1. So therefore the output sequence will start from what? That is a calculation part. And that calculation part is done. Input sequence, let us assume the input sequence starting instance is n1, that is equals to 0. So the output sequence, no output, not the impulse sequence, impulse sequence starting instance is n2, that is equals to minus 1, because if it is n equals to 0, this will be n equals to minus 1. Same here, this is n equals to 0. So the starting sequence n1 is equal to 0 and n2 is equal to 0. So the output sequence will start from, so the output sequence starting instance is n equals to n1 plus of n2. So that equals to what? 0 plus of minus 1. So that is equals to minus 1. So the output sequence will start from minus 1. That is the first thing. Now, how many samples will be there? The impulse and the input have the samples 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 respectively. So the sample number of input and the impulse have 4 each. So we can write the input and impulse response consists of 4 samples. So the output will consist
The formula is L plus M minus 1. N, capital N equals to, that is the length of the input sequence. Length of output sequence. And this is the length of input. And this is the length of impulse. So that is equals to here 4 plus 4 minus 1. So what is this? 4 plus 4 is 8 minus 1, that is 7 samples. So you will see that in the case when we will get the output sequence, we will see that the output sequence will consist of 7 samples. Understand everybody? Yes, sir. So first ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. जो इनपुट सीक्वेंस अगर n equals to 1 होगा, मतलब इनपुट सीक्वेंस स्टार्टिंग इज starting time, if it is what will be the starting instance, then impulse sequence, what is the starting instance, then output sequence, what will be the starting instance. There are two signals. I am not telling that every time there will be input sequence and impulse sequence. It can be x1 and x2, two signals are there. So what we have to calculate, what is the starting instance of the first signal. Here the starting instance of the first signal is n equals to 0. And the second signal is n equals to -1. So the new generator sequence will start from n equals to n1 plus n2. That is the that is the actual आपका आउट, मतलब जो न्यू जनरेटर सिग्नल्स होगा वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा उसका डिटर्मिनेशन. उसके बाद आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इनपुट और जो इंपल्स है, ये दोनों जो रिस्पॉन्स है, ये दोनों कितना सैंपल्स आपका टोटल लेंथ ऑफ द सीक्वेंस क्या है. अगर x1n और x2n दो सिग्नल है तो पहला का अगर लेंथ ऑफ द सीक्वेंस हम लोग पकड़ते हैं कैपिटल N और दूसरा का लेंथ ऑफ द सीक्वेंस हम लोग पकड़ते हैं कैपिटल N, तो हमारा जो न्यू जनरेटर सीक्वेंस होगा उसका लेंथ क्या होगा, n इक्वल्स टू L प्लस M माइनस 1. ये एक फॉर्मूला है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपल्स रिस्पॉन्स और इनपुट सीक्वेंस का लेंथ 4 है, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 7 सैंपल्स बन गया जो न्यू जनरेटर सीक्वेंस होगा उसका लेंथ. तो पहले ही ये सब डिटरमाइन करने से हम लोगों का क्या फायदा होगा, हम लोग जान सकते हैं कि अपना सीक्वेंस कितना होगा और सीक्वेंस का क्या कितना होगा. अंडरस्टैंड? यस सर. अच्छा, अब जो दो सिस्टम, मतलब दो तरीका है अपना लीनियर कन्वोल्यूशन निकालने के लिए, वो दो सिस्टम होगा आपका. एक होगा आपका वो हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हम लोग बोलेंगे जो है हमारा क्या है, मैट्रिक्स मेथड. अब ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर एग्जामिनेशन में आपका लीनियर कन्वोल्यूशन करने के लिए आपको 5 या 6 नंबर दिया जाएगा तो बिल्कुल आपको ग्राफिकल मेथड से करना पड़ेगा. अगर कम नंबर है जैसे कि 2 या 3 नंबर होगा इस क्वेश्चन को, तो आप मैट्रिक्स मेथड कर सकते हैं. पर मैट्रिक्स मेथड आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कभी भी लीनियर कन्वोल्यूशन ग्राफिकल मेथड करने से कुछ गलती होगी तो पहले से आप लोग जान सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान सा मेथड है. सॉरी, मैट्रिक्स मेथड बहुत ही आसान सा मेथड है. तो पहले हम लोग आज ग्राफिकल मेथड करेंगे, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मेथड करेंगे.
सो ग्राफिकल मेथड में हमारा इनपुट सीक्वेंस जो है उसका एक ग्राफ आप जान सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करके आपको बनाना है। तो ग्राफिकल मेथड तो पहले सा ग्राफ 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, 2, 3। तो पहले सीक्वेंस क्या था, x of n equals to 1, 2, 0.5 एंड 1। स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 से। तो 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। फिर 1 का वैल्यू 2, फिर 2 का वैल्यू 0.5 तो छोटा होगा, और 3 का वैल्यू फिर से 1। सो ये मेरा इनपुट सीक्वेंस है। अगर इधर आप लोग कल्पना कर सकते हैं तो इधर है आपका x of m, और इधर है आपका m। So this is input sequence. Next is our output sequence. तो यहाँ पर आउटपुट सीक्वेंस बोल रहे हैं, हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, -1 से शुरू होता है। तो ये 0th पोजीशन था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये है -1। तो -1 में क्या है, उसका वैल्यू 1 है। देन 0 पे कितना वैल्यू है, 2 है। फिर 1 पे कितना वैल्यू है, फिर से 1 है। और 2 पे कितना वैल्यू है, -1। -1 मतलब नीचे जाएगा। तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 0.5, इसका वैल्यू है 1, इधर इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू 2, 1 और -1। दिस साइड इज m एंड दिस इज hm। सो ये दो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है और ये मेरा इनपुट सीक्वेंस है। तो दोनों सिग्नल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो सेकंड सिग्नल होगा। अगर मैं पकड़ता हूं ये x1 है, ये x2 है, तो मेरा जो सेकंड सिग्नल होगा वो सेकंड सिग्नल को मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। So we have to do folding operation on the second signal. This is the first step. First step to follow while you are doing linear convolution. First, the input sequence, draw the input sequence, then draw the impulse sequence, and then fold the impulse response. So let us fold the impulse response. So this is the 0th position. This is -1. This is -2. This is 1. This is 2. So everybody knows folding. So what will happen? Which is in the left hand side of 0 will come into the right hand side, and which is in the right hand side of 0
that will come into the left hand side. So यहाँ पर देखिए 0 के बाद क्या है, 1 पे एक वैल्यू था, 2 पे एक वैल्यू था, तो ये -1 और -2 पे चला जाएगा रेस्पेक्टिवली, और -1 पे एक वैल्यू था जो हमारा 1 पे वैल्यू चला आएगा। तो मेरा नया सीक्वेंस क्या होगा, -1 -2 पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो है -1, क्योंकि 2 पे वैल्यू था -1। So this is our first, this is -1। -1 पे क्या वैल्यू आएगा, 1 पे जो वैल्यू था वो है +1। फिर क्या है, फिर मेरा 0 पे वैल्यू आएगा, 0 पे वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा। सो 0 पे क्या था, 2, तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 को बेस लाइन हम लोग पकड़ते हैं, 0 से हम लोग मुड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, ये 2 रहेगा। अब -1 पे जो वैल्यू था, जो है +1, वो मेरा 1 पे वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोल्डिंग, ये बन गया m, और इधर x y एक्सिस बन गया h ऑफ माइनस। सो फोल्डेड impulse response. Okay. Yes, sir. तो किसी को प्रॉब्लम नहीं? No, sir. अब होगा मेरा फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या था, जनरलाइज्ड फॉर्मूला, y of n is equal to summation of, summation of m equals to -infinity to +infinity x of m into h of n minus। तो इसको हम लोग बनाएंगे। सो पहला मेरा क्या है, क्योंकि सीक्वेंस शुरू होता है n इक्वल्स टू -1, मैंने बोला था कि आउटपुट रेस्पॉन्स शुरू होगा n इक्वल्स टू -1। सो व्हेन n equals to -1, y of -1 will be summation of m equals to -infinity to +infinity x of m into h of -1 minus m। So what will be this? h of -1 minus m। तो h of -m हम लोग ये जानते हैं, इसके साथ -1 कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में और एक यूनिट हम लोग शिफ्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो 1 यूनिट शिफ्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं h ऑफ -m को, तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? सर -3 सर। यस,
At -3 it will be a value of -1, क्योंकि जो -2 में था वो एक यूनिट शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि है मेरा -1 -m, तो -1 मतलब लेफ्ट हैंड में जाएगा, h ऑफ -m जो था उसको लेफ्ट हैंड में एक यूनिट जाएगा, तो -3 पे आ जाएगा मेरा वैल्यू -1 जो था -2 पे। फिर -2 पे क्या वैल्यू आएगा, अगर ये -2 हो गया तो -2 पे क्या वैल्यू होगा, जो -1 में था, जो हमारा वैल्यू है +1। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब इसके अलावा आप लोग लीनियर कन्वोल्यूशन नहीं कर सकते अगर ये समझ नहीं पाओगे तुम। तो -1 में जो वैल्यू था वो कहां से आएगा, वो 0 पे जो वैल्यू था वो आ जाएगा, क्योंकि एक यूनिट शिफ्ट हो रहा है, फोल्डिंग नहीं हो रहा है कि 0 का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, ये शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 0 का क्या वैल्यू होगा, 0 का वैल्यू होगा जो हमारा पास है 1 का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। So this is h of -1 -m. This side is m and this side is this. So ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, x ऑफ m के साथ। तो इसके साथ मेरा इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो सिग्नल मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, पर आप लोगों को फिर से ये वाला सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर आपको रिजल्ट ऐसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 में कोई वैल्यू है, यस प्लीज रेस्पॉन्स है कोई नो वैल्यू, सर। तो मतलब -3 में जो वैल्यू है -1 उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 0। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा। वैसे ही -2 पे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो -2 में 1 × 0 होगा, फिर से 0 होगा, फिर से -1 पे कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी 0 होगा। कब आएगा वैल्यू, 0 पे यहाँ पर 1 है, 0 पे यहाँ पर 1 है देखो, और यहाँ पर 0 पे 1 है, तो दोनों 0 पे 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 1 × 1 इक्वल्स टू हाउ मच, 1। तो यहाँ पर एक पीक दिखाएगा आपको जिसका वैल्यू आएगा 1। ओके, उसके बाद 1 पे देखिए, 1 पे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, सो 2 × 0 विल बी 0। यहाँ पर 2 पे वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या है 0.5, सो दैट विल बी अगेन 0। यहाँ पर 3 पे क्या वैल्यू है 0, यहाँ पर क्या है 1, सो दैट विल अगेन 0। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट, that is y of -1, and what will be the value, that will be value of y of -1 equals to 1, so that is equals to 1. So this is the figure, is the sum of product sequence.
ओके, सो ये y ऑफ -1 हो गया। तो व्हेन n इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 क्या होगा? समेशन ऑफ m इक्वल्स टू -infinity to +infinity x of m into h of what? 0 minus m. So that can be represented as summation of m equals to -infinity to +infinity x of m into h of minus. हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा? जस्ट अ मोमेंट। Can you hear me now? यस सर। ओके, सो मैं जो बोल रहा था लास्ट में वो हमारा क्या होगा? समेशन क्या बोला मैंने? समेशन y of 0, that is summation of m equals to -infinity to +infinity x of m into h of 0 minus m. So that is equals to summation m equals to -infinity to +infinity x of m into h of minus m. तो इसका क्या होगा बता सकते हो तुम लोग? देखो, जब मैंने x ऑफ m लिखूंगा तो x ऑफ m में 0 पे वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है, और मेरा जो h ऑफ माइनस m था वहां पर -1 पे वैल्यू है, सॉरी -2 पे वैल्यू है, -1 पे वैल्यू है, 0 पे वैल्यू है और 1 पे वैल्यू है। तो मेरा जो x ऑफ m है वहां पर तो सिर्फ 0 और 1 पे वैल्यू है, -1 या -2 पे कोई वैल्यू नहीं। तो -2 और -1 के जो राशि था वो तो 0 बन गया। सो -1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब जो 0 पे वैल्यू है वो है वहां पर 2, और यहाँ पर कितना वैल्यू है? 1। सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। और दूसरा वैल्यू जो 1 पे था, h ऑफ माइनस m में 1 पे क्या वैल्यू है? 1। और x ऑफ m में 1 पे क्या वैल्यू है? 2। सो 2 इंटू 2। So this gives you y of 0 equals to 2 plus 2, that is equals to 4. समझ में आया? यस सर। सर पर पिछले वाला में सर एक सवाल था सर। बोलो। पिछला वाला स्लाइड दिखाई नहीं सर, थोड़ा सा पिछला वाला स्लाइड से। पिछला वाला स्लाइड तो नहीं आएगा, कट गया था इसीलिए नहीं दिखा पाएगा अभी। सर जो मतलब लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे थे सिग्नल को, तो उसमें -1 -m होगा कि +1 -m होगा? नहीं, पहले वाला क्या है? n इक्वल्स टू -1। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? n माइनस m। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? समेशन m इक्वल्स टू -infinity to +infinity x of m into h of n minus m। तो मेरा सीक्वेंस शुरू हो रहा है y ऑफ -1 से, तो मतलब n इक्वल्स टू कितना है? -1।
तो वही अगर पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ m। अब n के वैल्यू पुट करें, n के वैल्यू क्या है -1, तो -1 माइनस m। तो अगर पहले अगर -1 होगा तो जो h ऑफ m का वैल्यू था, h ऑफ m का वैल्यू क्या था, यहाँ पर 0 पे उसका वैल्यू था 2, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर उसका वैल्यू था -1 पे वैल्यू था 1, -2 पे वैल्यू था क्या 1, -1, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस इज 2, और ये 0 और 1 पे क्या वैल्यू था 1। तो ये वैल्यू इसके साथ -1 नेगेटिव में शिफ्ट होगा, तो -2 का जो वैल्यू था वो चला जाएगा -3 पे, -1 का जो वैल्यू था वो -2 पे, 0 का वैल्यू -1 पे और 1 का वैल्यू 0 पे। वही मैंने किया। सर जैसे जैसे होता है ना सर, जैसे UN स्टार्ट होता है, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है सर, अगर UN+1 करेंगे तो +1 करते हैं तब ना लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है सर उसमें। अरे भैया UN अलग तो सा इसमें चीज, भी आप लेफ्ट शिफ्ट। UN अलग सा चीज है, ये अलग सा चीज है। यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ कि n इक्वल्स टू -1 से शुरू हो रहा है, तो n की जगह -1 बिठाओ तभी तो आएगा। UN की बात क्यों कर रहे हो? UN तो यूनिट स्टेप सिग्नल है, उसका तो n इक्वल्स मतलब टू। सर जैसे स्टार्ट हो रहा है सर 0 से, तो उसको लेफ्ट की ओर अगर लेके जाना है तो उसमें तो +1 ऐड करते हैं तो एडवांस ना होता है सर। यहाँ पर लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, एडवांस नेगेटिव कुछ भी नहीं है। आपको n इक्वल्स टू -1 -m कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम बताओ। n मेरा -1 है और मैंने ये जो सिग्नल है ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम बताओ। ये एडवांस डिले पे कोई बात नहीं, ये सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये सिग्नल रिप्रेजेंट तभी करोगे जो h ऑफ -m होगा, उसके साथ मैंने -1 ऐड किया है। तो -1 ऐड किया मतलब कि -1 आगे जाएगा। तो सिग्नल कहां से शुरू हो रहा है -2 से, तो सिग्नल अब कहां से शुरू होगा -3 से, तभी तो आगे आगे जाएगा। पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर +1 रहता था तो क्या करेंगे, -2 से शुरू हो रहा था सिग्नल, अब -1 से शुरू हो रहा है, तभी तो पीछे जाएगा। तो 1 -n अगर रहता था तो पीछे जाएगा, वही हो रहा है। अगर -1 -m तेरा है यस तो सर। आगे जाएगा, वही तो कर रहे हैं। तो ऐसे आपको हर चीज के लिए ड्राइंग करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ड्राइंग नहीं किया, पर यहाँ पर आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। अर्थात ये जो सिग्नल है ये सिग्नल आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, और x ऑफ m जो सिग्नल है उसको ड्राइंग करना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्टेंट जो सिग्नल आएगा, मतलब दोनों को